First of all, I am thankful to Allah who has given me this golden opportunity to be a part of this beautiful evening. Honorable Director Sir and respected Principal Sir, virtuous teachers, all the beautiful flowers of As-Sabil Academy, warm welcome to you. میں ایک شعر کے ذریعے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میری بات آپ کے دل کو چھوئے اور اس پر آپ عمل پیرا بھی ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شعر کچھ اس طرح سے ہے. میں اپنا دل مثل آئینے شفاف رکھتا ہوں. میں اپنا دل مثل آئینے شفاف رکھتا ہوں. مجھے جینا نہیں آتا کسی سے بدگماں ہو کر. مجھے جینا نہیں آتا کسی سے بدگماں ہو کر. یہ جو شعر ہے یہ اپنے آپ میں اس کے اندر بہت گہرائی ہے. آپ لوگ ان کے کچھ الفاظ کو سمجھے ہوں گے, کچھ نہیں بھی سمجھے ہوں گے. سب سے پہلے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ انسان کی کامیابی, انسان کے عمل اور انسان کے دخل کا تعلق ان کی نیت سے ہے. اگر نیت بہتر ہے تو ہر کام آسان ہے. کتنی بھی پریشانیاں آئیں گی زندگی بہت آسان سا لگے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ نیت بہت صاف شفاف ہونی چاہیے. آئینے کی طرح جو میں نے کہا کہ میں اپنا دل مثل آئینے شفاف رکھتا ہوں, مطلب آئینے کی طرح انسان کو اپنا دل رکھنا چاہیے. دل صاف رہے گا, دماغ پر دباؤ نہیں رہے گا. اور جب دل اور دماغ دونوں کے بیچ میں کوارڈینیشن ہوں گی تو آپ یقین جانیے کہ آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سب سے پہلے نواب بہت بہت شکریہ. آپ جو بھی اپنے طور پر کر رہے تھے کافی اچھا کر رہے تھے, اور وہ جو بیچ میں واضح نصیحت سے نواز رہے تھے, السبیل کے پھولوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بہت ہی قابل تعریف تھا. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, کچھ چیزیں میں نے نوٹس کی ہے اور یہ بات میں پہلے سے بھی جانتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر اس پوری کائنات میں, اور خصوصاً ہم لوگ جو ہیں, ہم لوگوں کو کہا گیا ہے اشرف المخلوقات. ہم معمولی انسان نہیں ہیں, ہم کو اشرف المخلوقات کے تخلص سے نوازا گیا ہے. اشرف المخلوقات مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں بہت عظیم ہستی ہیں. اب دوسری بات پر آتے ہیں کہ ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ بہت اسپیشل کوالٹی ہے. ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ بہت اسپیشل کوالٹی ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. کوئی کوالٹی آپ کے اندر ہے وہ میرے اندر نہیں ہے, جو میرے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. فرق کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں صرف فرق یہ ہوتا ہے اس صلاحیت کو پہچاننا کہ ہمارے اندر وہ اسپیشل کوالٹی کیا ہے. سچن تندولکر نے اپنے آپ کو پہچان لیا, آج کرکٹ کی دنیا کا بھگوان مانے جاتے ہیں. لتا منگیشکر جی نے اپنے آپ کو پہچان لیا, کوکیلا کا خطاب مل گیا. اس طریقے سے بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پہچانا اور اس کو نکھارا, اس پر کام کیا. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, ابھی نواب جو کچھ بھی باتیں کر رہے تھے ان کے لائن میں کہیں کچھ ایرر ہو رہا تھا یا کچھ بھی, تو باقی لوگ جو اس کو نوٹس کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر یہ لائن غلط بولا ہے, یہاں پر یہ بولا جا سکتا ہے, یہاں پہ وہ بولا جا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جب غلط کو پکڑنے کی صلاحیت ہے تو صحیح بھی آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. آج میں یہاں آیا تھا, یہ میری خوش قسمتی ہے. من میں تھا کہیں نہ کہیں دیکھیں گے آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہی بدنظمی کے ساتھ ہے, لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیے ہر اسکول میں سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ, ٹھیک ہے, اور سب سے اچھے اور آئیڈل اسٹوڈنٹ جو مانے جاتے ہیں وہ آپ کے 10th والے مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے 10th والوں کو اکثر یہ کہا بھی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری, اور پورے آپ کہیں بھی اسکول میں جائیں گے تو سب سے جو آئیڈل اسٹوڈنٹ مانے جاتے ہیں وہ 9th والے مانے جاتے ہیں. 10th اور 9th, 10th والوں کی رسپانسبلٹی 9th والوں کے مقابلے میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے اوپر بورڈ کا پریشر رہتا ہے کہ ہم کو اس بار بورڈ کا ایگزام دینا ہے, اچھے رزلٹ لینا, تو وہ کہیں نہ کہیں مائنڈ ان کا ڈائیورٹ ہو جائے. لیکن 9th والے اگر چاہیں گے, اگر وہ اپنا پرفارمنس بہتر دیں گے تو آپ یقین جانیے کہ باقی کے سارے کلاسز جو ہے وہ کرنے لگیں گے. سیڑھی کا سب سے اوپری جو پائدان ہے, سب سے اوپری حصہ ہے وہ 10th ہے. 10th والوں کو ہم فری کر دیتے ہیں, چلیے وہ بورڈ کا مسئلہ ہوگا, لیکن 9th والے باقی ساری رسپانسبلٹی کو اگر وہ چاہیں باس نے خود ہی انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں, ایک ورڈ جو مجھے بار بار سننے میں آیا کہ آ کر شاعری پیش کریں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاعری ورڈ جو آپ بولتے ہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر ایک بچہ آ رہا ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, پیش کر رہا ہے, 3-4 شاعری بول رہے ہیں نا, لیکن اس کے لیے بولنا کیا تھا کہ میں فلاں کو بلانا چاہ رہا ہوں, اور وہ کیا کہتا ہے کہ چند اشعار
से नवाजा या पेश करें, है ना। अशार शेर की जमा है अशार, है ना। और उसमें भी क्योंकि 4 लाइन के होते हैं तो रुबाई हो जाते हैं, कता हो जाता है, मिसरा हो जाता है, ये सब कुछ है। और थॉट जो है आप लोगों के पास थॉट तो भरा हुआ है। मुझको लगता है कि मैं जितना आपके पूरे फिजिक्स में सेल्स नहीं होगा उससे ज्यादा थॉट से भरा हुआ है, लेकिन अमल से आपको सब दूर है, ठीक है। थॉट से थोड़ी कमी हमें याद है, लेकिन इन पर भी अगर अमल हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। आप लोग हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आज यहाँ बैठे, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। पता नहीं आप में से कल कौन कह रहा था कि राष्ट्रपति बन जाए, पता नहीं किस किस पद पर जाएंगे, उसी की कोशिश में लगे मैं। उस समय माइक अगर हाथ में आएगा तो आपको लगेगा ओ सांप क्या कहते हैं फन निकाले हुआ है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। ये बहुत अच्छी कोशिश है, यहाँ पर आप सबको इकट्ठा किया जाता है और आपके अंदर की जो झिझक है उस झिझक को खत्म करने की कोशिश की है, उसको कुचलने की कोशिश है। आपके अंदर जो झिझक है, आप माइक पकड़े तो इसका मतलब आप बादशाह है, आपके सामने सब जीरो है। तो हमें जो भी बोलना है, जो भी माफी ज़मीर अदा करना है, उसको हम पूरी जिम्मेदारी, पूरी मुस्तैदी, पूरी खुश मिजाजी के साथ हम उसको बोल सकते हैं, अदा कर सकते हैं, ठीक है। एक शेर है बहुत अच्छा से मतलब कहता है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। आज आप लोगों ने जो भी परफॉर्मेंस किया है, एक सेंस में मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स ओके, लेकिन हम इस एकेडमी का हिस्सा हैं और शुरू से आप लोग कोई 9th में, कोई 10th में, कोई 8th में, और बहुत दिनों से आप ये चीज प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये 0 लेवल का परफॉर्मेंस था, ठीक है। इसका तरीका है सबसे अच्छा ये, आप लोग हर कोई अपने अंदर तलाशी कि आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या है। कोई गाता बहुत अच्छा है, किसी की आवाज बहुत अच्छी है, किसी की आवाज बहुत खराब है फिर भी गा रहा है, क्यों गा रहे हो? मत गाओ ना, अपने लिए गाओ। यू कैन बी अ बाथरूम सिंगर इन योर एक्स्ट्रा टाइम, पास टाइम, ठीक है। माइक पर गाने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी आवाज अच्छी, कोशिश भी मत कीजिए आप, साफ बात है। किसी के अंदर स्पीच का पावर है, वो तकरीर बहुत अच्छी कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने यहाँ पे शेर व शायरी किया था, बहुत जबरदस्त था उनका। उनके अंदर से जो उनका अक्ष जो नुमाया हो रहा था, ऐसा लग रहा था राहत इंदौरी साहब बाहर निकलने ही वाले। चाहे तो मिर्जा गालिब के खानदान से इनका ताल्लुक है या फिर अल्लामा इकबाल के पोताई भतीजा है, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है। बेशुमार शायर हैं, अच्छे अच्छे शायर हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, मिर्जा गालिब साहब हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, फराक गोरखपुरी हैं, दाग देहलवी हैं, कलीम आजिज हैं, बेशुमार शायर हैं। अगर आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी हो सकता है, वहाँ पर किताबें हों, आप उनके क्या कहते हैं कि अशार 2 लाइन वाले याद मत कीजिए, आप रुबाई याद कीजिए 4 लाइन वाले, है ना, ये मसीह याद कीजिए 6 लाइन वाले। उसको करने का क्या फायदा होगा, जब आप माइक पर आएंगे 4 लाइन बोल करके भी सबके तवज्जुहात को आप अपनी तरफ मबजूल कर सकते हैं। यू कैन गेट एवरी सिंगल पर्सन्स अटेंशन टुवर्ड्स यू, आप अपनी तरफ खींच सकते हैं। शर्त क्या है कि वो अंदाज चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कोई मुझसे बेहतर बोल सकता हो, होता ही होगा, आइडिया होगा उनको, ठीक है, लेकिन माइक पर आकर के बोलना बहुत बड़ी बात है। किसी को शायरी में शौक है, ठीक है, अगर कोई शायरी बहुत अच्छी कर सकता है तो इसका मतलब समझिए वो बहुत ज़हीन है। बहुत से बच्चे बैठ नहीं देते हैं, इसका मतलब ज़हीन है वो शायरी में प्रैक्टिस करते हैं। जो स्पीच में अच्छे हैं, कुछ 4-5 टॉपिक्स, 6, 7, 8, 10 टॉपिक्स पर क्या जाता है, स्पीच याद कर ले, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। थॉट बोलना है, थॉट के साथ एक चीज़ उस दिन प्रिंसिपल सर ने बड़ी अच्छी बात कही थी मॉर्निंग असेंबली में कि थॉट को आप जो है एक्सप्लेन कीजिए। आप 1 लाइन, 1.5 लाइन, 5 वर्ड का थॉट बोलिए, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो गड़बड़, एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। और कुछ जो चीज़ें हैं एकेडमिक के हिसाब से वो बहुत नाज़िबा है। हो सकता है कि आप हार्ड हो रहे हो, बुरा लग रहा हो, जो भी लगे उससे हमको भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वो ताल्लुक है आपसे और हम आपका बेहतरी चाहते हैं। कोई आकर के अपने प्रेजेंटेशन में कह रहे हैं कि गैंगस्टर बनना है तो बिजली जैसा रूप अख्तियार कर लेना है, तो ये करना है, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर वो करना होता तो ये जो आप स्कूल में यहाँ जो टाइम बिता रहे हैं, कभी आप खाने के लिए जाते हैं, आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है, खाना देकर खाने का मन, उसके बावजूद आप खाते हैं, तो ये सारी चीजें, कुर्बानियाँ, परेशानियाँ आप इसलिए नहीं झेलना कि नहीं आपको गजनी बनना है, करना है ना, यह गैंगस्टर का हिस्सा बनना है। हमको अल्लाह ताला ने चुना ही नहीं उसके लिए, हमको जिस काम के लिए चुना हम यहाँ इकट्ठे हो गए और हमको इसी पर काम। कोई गाता है, मान लीजिए कोई गाना अच्छा गाता है, वो प्रैक्टिस करे, अच्छे से प्रैक्टिस करके आए, गाना किसी से सुन सकता है, सुन ले, मेरे पास आ जाओ, 5-10 लोग मिलकर के मत आना कि सर इंटरटेन कीजिए हमको, ठीक है, आके आपको मोबाइल में सुना सर फला अच्छा गाना है, कोई बेहतरीन सॉन्ग आप चूज कर सकते। कोई नात पाक गा रहा है, अभी किसी को बुलाया था नवाब ने,
वो क्या कहता है कि उनको बुलाया क्या था कि मैं आपको मतलब क्या कहता है मधु कर रहा हूँ नाक पाक के लिए, और वो साहब आए, उन्होंने कहा कि जीना हो तो बाबा शराब मत पीना। शराब का और नाक का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि शराब को वो जो नाक वाले हैं जैसे ही वो आए उन्होंने हराम कर दिया, ठीक है। तो वो बेहरमती हो गई, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हम किसी बड़ी महफिल में इस चीज़ को करेंगे, ठीक है, तो पता नहीं क्या कहता है कि फूल बरसेंगे या सड़े हुए टमाटर बरसेंगे, वो रख जाना। ये चीज़ ख्याल रखना होगा। बीच में नवाब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, हमद और नात के बीच का फर्क उन्होंने समझा था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सीक्वेंस में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्या कहता है कलामुल्लाह के लिए बुलाइए, ठीक है। वो एंड हुआ, उसके बाद क्या कहता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, नहीं भी होंगे इंशाल्लाह, मुझे ये यकीन है कि नेक्स्ट वीक जो है मैं रहूं भी नहीं भी रहूं, तब भी क्या कहता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसके लिए सबसे पहले जो वर्क करने की जरूरत है कि जो कंडक्ट करेगा, सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है कि पूरे महफिल को इंटरटेनिंग बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम वो अपने ऊपर करे, ठीक है। वो लिस्टिंग करे, स्टूडेंट के पास जाए कि आप कौन सी चीज में इंटरेस्टेड है, उसका नाम लिखे, उसका टॉपिक लिखे। कोई बच्चा है अगर वो ये कह रहा है कि हमें क्या कहता है कि कुरान की अहमियत पर क्या कहता है तकरीर करनी, आप नाम लिख लीजिए, आप उसी के साथ आप अपने प्रेजेंटेशन तैयार करें, उस हिसाब से उसको बुलाइए, ठीक है। उसके बाद जैसे जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, उनको भी मौका देना है। कोई नए बच्चे हैं, अभी उनको झिझक है, वो आए अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, है ना, अपना नाम बता दे। और जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप जो पुशअप करने की कोशिश करें। जो नए बच्चे आए हैं उनको अपना थोड़ा सा क्या कहता है कि लाड प्यार दें, उनको ये फील नहीं हो। और एक बच्चा मैं नोटिस कर रहा था, वो रोए जा रहा था मतलब 1-2 दिन से, थोड़ा सा कुछ नहीं, आप अपने छोटा भाई समझ के थोड़े से सख्त से हाथ अगर फेर देंगे उनके ऊपर, आप यकीन नहीं उनका दिल लग जाएगा, उनको लगेगा वो मेरा भाई है। फोन पे बात हुई ना, वो कहेगा नहीं मम्मी अब मैं ठीक हूँ, यहाँ पे भैया है। तो इस तरीके से एक रिलेशन बनाना होगा, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनानी होगी, ठीक है। और जो भी चीज़ करना है, आज संडे सैटरडे इवनिंग हमारे माइंड में सेट रहे कि हमको प्रोग्राम का हिस्सा बनना है और मेरा परफॉर्मेंस हर किसी से बेटर होना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। थॉट बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने पेश किया है, शेर व शायरी की है बहुत अच्छा, कुछ बच्चों ने नाच सुना है पूरी अदायगी के साथ, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में भी अच्छा लगेगा, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। उसके लिए बस शर्त ये है कि सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ऊपर से लोग शुरू करें। 10th वाले आए, 9th वाले करें कि हाँ चलो हम लोग करना है। जब आप लोग थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे ना, तो ये बच्चे करने लगेंगे, अरे फला भैया ने बहुत अच्छा किया था, हमको वही वाला करना है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट हफ्ता इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और क्या कहता है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मैं हमेशा आप लोग कहता हूँ, कभी भी अगर मेरी ज़रूरत हो, आपको लगे कि नहीं यहाँ पर सर मेरी मदद कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह हर वक्त तैयार हैं आप सबके साथ में, ठीक है। इसी वजह से हॉस्टल भी पकड़ लिए हैं, बार बार छोड़ करके यहाँ पर है, आप लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कंडक्ट करने के लिए जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वही रहें, जूनियर क्लास के बच्चे इस चीज़ को नहीं करें। और सीनियर क्लास के बच्चे ये माइंड सेट कर लें, कोई क्या कहता है कि 10th से एक ले लें, 9 से ले लें, उसके बाद क्या कहता है कि 8 से ले लें, 7 से ले लें, बल्कि 8 तक ले लें। 3 क्लास के बच्चे रहेंगे और टर्न लगा लीजिए कि हमको इस सप्ताह हमको करना है। 10th वाले अगर क्या कहता है उनका शेड्यूल ज़्यादा बिजी है या क्या कहता है कि टाइम ज़्यादा करीब है, तो उनको छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्टेड होंगे तो करना है, लेकिन आपको फिर भी अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। आप यहाँ आए, आराम से सीक्वेंस में बच्चों को बैठा लीजिए, जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे बैठ जाए सीक्वेंस में, छोटों को आगे बढ़ाएं। कोई अच्छी चीज़ पेश कर रहा है आप क्लैपिंग करें, दाद दें उन्हें, ताकि उनका हौसला अफजाई हो सके, ठीक है। तो बहुत कुछ है जो किया जा सकता है और हम कर सकते हैं। मैं इस शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि एहसास हया जब तक आंखों में नहीं पड़ता, एहसास हया जब तक आंखों में नहीं पड़ता, पर्दा नहीं होता है दीवार उठाने से, पर्दा नहीं होता है।